Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's discuss more about Holistic Progress Card. Holistic Progress Card. In the last video, we talked about what is the meaning of Holistic Progress Report Card. We talked about 360-degree multidimensional evaluation of a child. We talked about the objectives of HPC, features of HPC, and we discussed about three developmental goals, right, related to health and well-being, effective communication, and IEL, that is involved learners. We also talked about competencies and learning outcomes, right? This was just a glimpse of what we discussed in the last video. If you want to know the details, please do check the previous video. So now here you go, my lovely educators. In this video, we shall talk about the various sections of a holistic progress card. एक holistic progress जो card है हमारा बच्चों को देंगे उनकी performance का term wise उनका हम assessment ले रहे हैं like from foundation till grade 3. उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर प्रोग्रेस कार्ड के अंदर कितने कितने कौन कौन से सेक्शन होंगे हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 1, अ ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ एंड अ ग्लिम्स ऑफ माई फैमिली. देखिए, चाहे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, चाहे हमारा एक नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड होता है दैट ट्रेडिशनल वाला जो हम बच्चों से शेयर किया करते थे, हर एक में वी स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जनरल प्रोफाइल, राइट? सो in the section 1 we shall talk about glimpse of myself, means talking about the student, and student himself or herself talks about his or her personality, talks about the family members, like it's just a glimpse. So a glimpse of myself and my family is a tool that gives children an opportunity to pay attention to themselves and their immediate surroundings. सबसे पहले बच्चों को अपने बारे में पता होना चाहिए, self awareness, and the children should be able to know about the family members, right, how they are related to each other, and it also helps them to present how they see themselves through the drawings and the pictures. It is a way to promote self reflection in the child. बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, राइट, कि बच्चे को अपने बारे में कितना पता है, कितनी अवेयरनेस है अबाउट द फैमिली and about himself or herself. Now, we need to consider the points as teachers. We should not interpret the child's picture. बच्चे ने अगर ड्राइंग बनाई है अपनी, चाहे वो स्टिक पिक्चर्स बनाई हैं, चाहे उसने कहीं से कुछ रेलेवेंट पिक्चर्स लेकर स्टिक किया है उसको, चाहे वो ड्रॉ किया है इन किसी भी फॉर्म में उसको ड्राइंग किया है, वो बच्चे की अपनी प्रेजेंटेशन है. दैट दिस चाइल्ड्स own perspective. We should not interpret any child's picture. Be open to everything and anything that the child draws, even if it's not representing a glimpse of themselves or the family. आपको उसको holistic progress card में लगाना है. जैसे anecdotal में हम उनकी जो बेस्ट जो है उनका वर्क है, उनकी टास्क है जिसमें परफॉर्म किया है, वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं. तो इसमें भी बच्चों की जो ड्राइंग है उसको एज इट इज लगाएंगे, उसके ऊपर अपनी कोई जजमेंट नहीं देंगे कि ये क्या बनाया है, इट्स नॉट रेलेवेंट, व्हाट्स, वो बच्चे का अपना पर्सपेक्टिव है. लेट चाइल्ड बी क्रिएटिव एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर चाइल्ड विद मटेरियल लाइक ग्लू स्टिक्स, पेबल स्टिक्स, कलर्स एक्सेट्रा टू यूज. तो आप बच्चा क्लासरूम में बैठकर एक कॉर्नर में बैठकर चाहे अपने फ्री टाइम में बनाए, चाहे आप क्लास में एक आपने टास्क दिया है कि गो हैड विद दैट, for that you need to provide the materials to the students, right, required to do that activity. I mean standardized form में सबको, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो सबके एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाने हैं, तो एक प्रॉपरली नीटली कट आउट जो है वो शीट का बच्चों को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज का आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको कि वो यूज कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू use that drawings and all in your holistic progress card. Now, talking about the reflection of the section 1 about me and myself and my family, through the observation, look for engagement level. आपने क्या ऑब्जर्व करना है? हाउ मच द चाइल्ड इज एंगेज्ड इन द एक्टिविटी, कैसे वो इंजॉय कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, अपने थॉट्स को वो ड्राइंग्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है. हाउ वेल आर दे यूजिंग क्रिएटिव एलिमेंट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, अलग अलग जो क्राफ्ट की आइटम्स आपने वहां पर अवेलेबल कराई हैं उनको कैसे यूज करके फ्रॉम इन्वायरमेंट से वो पेपर के ऊपर, हाउ द चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग, right, and their use of fine motor skills, gross motor skills while they are attempting the activity. बच्चा इंडिपेंडेंटली उन चीजों को यूज कर पा रहा है, प्रॉपर प्लेस पर राइट कॉम्बिनेशन कैसे वो कर रहा है, तो आपको उस चीज को ऑब्जर्व करना है. एंड उसके बाद में जब बच्चे ने द एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड, देन थ्रू डायलॉग
engage in a dialogue to understand what they have drawn or pasted. बच्चों से पूछेंगे, कॉन्वर्सेशन होगा कि आपने क्या लगाया है, कौन सा मटेरियल यूज किया है, क्या पेस्ट किया है, क्या आपने बनाया है, इससे आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो. एंड फॉर दैट मेक श्योर, आई मीन डोंट बी स्टिक फॉर द स्कूल लैंग्वेज, गो हैड विद द होम लैंग्वेज, जिसमें भी बच्चा कंफर्टेबल है, मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज. तो आपको उसको प्रमोट करना है कि बच्चा जो है अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए व्हाट द चाइल्ड हैज ड्रॉन. Now, the next section number 2 is all about me. पहले तो ग्लिम्स था, आपने फैमिली का पिक्चर ड्रॉ किया, राइट. एंड द सेकंड सेक्शन इज ऑल अबाउट मी. मेरे बारे में सब कुछ, सब कुछ मतलब बच्चे को अपने बारे में पता है, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपना हाइट, अपना डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज थिंग्स. सो इसमें क्या आता है, इट्स अ टूल दैट गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स. Will invite a student to develop self-awareness and awareness of the presence in the environment. This tool has various elements such as child's birthday, height, weight, friends' names, parents' names, likes, dislikes, favorite color, favorite food, color, animal. I mean, maybe if the child is involved in उसको कुछ कार्टून कैरेक्टर पर्टिकुलर पसंद है, कोई पेट पसंद है, जो भी बच्चे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ऑल अबाउट मी. तो दिस एक्टिविटी विल बी देयर इन सेक्शन नंबर 2 एंड हाउ यू विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस एक्टिविटी. ऑब्जर्व द एंगेजमेंट लेवल ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों का एंगेजमेंट लेवल क्या है, वो कितना एक्साइटेड हो रहे हैं, उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर दे एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, डू दे नो अबाउट देमसेल्व्स कि उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उनके टेस्ट एंड जो भी उनकी प्रेफरेंसेस हैं, आर दे एबल टू एक्सप्रेस इट. Notice how easily they were able to identify their friends' names, likes, right? And support and brainstorm with them in case you see them struggling. अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको उनको समझाना है कि इस तरीके से आपको सोचना है, आप इसके बारे में सोचिए, इस तरीके से आपको कौन पसंद है. I mean, you need to scaffold a little wherever it's required. And assess them for their comprehension, their awareness about self, and their engagement with the exercise. आप चाहे एक रेडी टू यूज उनको वर्कशीट दे रहे हैं, जैसे हम ऑल अबाउट मी का कराते हैं, उसमें आपने कुछ हेडिंग्स दे रखे हैं, और छोटे बच्चे हैं तो आप पिक्चर्स के थ्रू उनसे पूछ रहे हैं, बिकॉज बच्चे अगर सेंटेंसेस रीड नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी रीड किंडरगार्टन के बच्चे हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क देम थ्रू पिक्चर्स एंड इवन गिव देम द प्रेफरेंस कि वो अगर लिखना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज वो नहीं लिख सकते, तो लेट देम ड्रॉ इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चाइल्ड को बैट बॉल के साथ, आई मीन क्रिकेट खेलना पसंद है, तो चाइल्ड कैन ड्रॉ अ बैट एंड बॉल. चाइल्ड को अगर ग्रीन कलर पसंद है, सपोज येलो पिंक कलर पसंद है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस स्पेलिंग, द चाइल्ड कैन यूज द कलर and fill it like this is my favorite color. I mean, let me creative, right? आपको उसके बारे में जानना है, आपको यहाँ पर ये जज नहीं कर रहे कि बच्चे को स्पेलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? आपको बच्चे के बारे में जानना है कि उसको क्या पसंद है. So you can go ahead with the drawings. Now, the section number 3 is checklist observation of the developmental goals. In the last video, we discussed 3 developmental goals, and now we will be talking about the checklist about these developmental goals. It's a competency-based assessment tool that will allow the teachers to assess the students on certain learning outcomes. इसमें हम कुछ एक learning outcomes जो है वो use करेंगे. देखिए, जितनी हम लर्निंग आउटकम्स क्लास वाइज डिस्कस करेंगे, दे आर मेनी, हम सारे के सारी लर्निंग आउटकम्स को एक प्रोग्रेसिव जो हमारा कार्ड है, प्रोग्रेस कार्ड है, उसमें सारी की सारी लर्निंग आउटकम्स ऐड नहीं कर सकते. तो स्कूल्स के अकॉर्डिंगली, अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आप उसमें से कुछ एक जो आउटकम्स हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ, हम अभी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इस क्लास के बच्चों में, यू कैन पिक एंड चूज दोज लर्निंग आउटकम्स. स्कूल्स आर फ्री टू डू दैट. लाइक सीबीएसई की तरफ से, किसी भी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको उसमें से सारी लर्निंग आउटकम्स यूज करनी है. इट इज क्लियरली मेंशन्ड लाइक यू कैन पिक एंड चूज एज पर योर नीड्स, एज पर योर थिंकिंग, एज पर योर पर्सपेक्टिव. Now, the items included in this assessment from revolve around the following developmental goals, the 3 goals that we shall discuss, and it's mentioned in the Nippon guidelines as well. Now, the 3 developmental goals we discussed in the last video too. First one related to good health and well-being, and the next one is effective communication, and the last one, the third one, is knowing about the immediate environment, being in you see involved learners. What do you know about the environment? Now let's talk about under this good health and well-being, we shall talk about self-awareness, managing emotions, interacting with each other,
empathy, problem solving, self-regulation, pro-social behavior, health and hygiene, motor skills, and participation. And under developmental goal, we shall talk about effective communication. Communication के लिए you should know about building relationships, building and managing conversation, sound, symbol, association, first language skills, and second language acquisition. मदर लैंग्वेज की स्किल्स उसमें कौन कौन सी हैं एंड उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज यानी स्कूल लैंग्वेज वो कैसे उसको एक्वायर कर रहा है बच्चा राइट उसके अकॉर्डिंगली यू विल मेंशन दैट एंड अंडर द डेवलपमेंटल गोल वी शैल टॉक अबाउट building relations, building, making conversation, this I've talked about. And in informed learners, we shall talk about information processing. जो बच्चे को आप inform करते हैं, information देते हैं, data देते हैं, उसको process कैसे करते हैं. Curiosity, problem solving, sensory development, environmental awareness, sequencing and concept formation, numeracy, financial literacy, concept formation and technology skills. ये स्किल्स इसमें आती हैं. इसके अंडर जो एलओज हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, वो ग्रेड वाइज डिफरेंट होंगे, राइट? So here you go. Let's go ahead with section number 4, self-assessment and peer assessment. It's a tool that enables a student to look at themselves. बच्चे अपने आप को assess करेंगे कि वो एक जो आपने rubrics बना के दिए हैं वहां पर अपने आप को वो कहाँ पर पाते हैं, where do they stand, उनको क्या लगता है वो कहाँ पर है, उन्होंने कितना अचीव किया है, right? And see how much they have grown, moved ahead in all the activities. जितनी आपने activities based on learning outcomes plan की हैं तो बच्चे अपने आप को कहाँ देखते हैं, where do they stand, and it also includes an understanding of the engagement level by the students peers in the activities which involve a level of teamwork. कि peer का assessment भी होगा एक टीम में आप कैसा जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, राइट, इन द ग्रुप वर्क, बिकॉज 21st सेंचुरी की जब बात कर रहे हैं स्किल्स की, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, आई मीन वी टॉक अबाउट ऑल दीज स्किल्स, राइट? तो इसमें आपका क्या आ गया, आप अपनी असेसमेंट कर रहे हो एंड द पीयर इज ऑल्सो हेल्पिंग यू फॉर द असेसमेंट. एंड इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एक्टिविटीज कि कैसे एंगेज है ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी एंड इन विच एक्टिविटीज दे आर फीलिंग हैप्पी, इलेटेड, डिलाइटेड, कि ये इनसे उनको खुशी मिलती है इसमें पार्टिसिपेट करने से. एंड वंस स्टूडेंट्स दे हैव फिल्ड इन असेसमेंट, कंपेयर द आंसर्स टू योर ऑब्जर्वेशंस, राइट? उन्होंने अगर सेल्फ असेसमेंट किया है उसको एज इट इज हम उसमें पोर्टफोलियो में नहीं लगाएंगे, एक बार कंपेयर करेंगे आपने क्या ऑब्जर्व किया है और इस असेसमेंट के अकॉर्डिंगली बच्चे ने किस चीज को टिक किया है, कहाँ स्टार लगाया है, अपने आप को कितने स्टार दिए हैं, कहाँ पर रेट किया है, द चाइल्ड इज एट द बिगिनर लेवल और मे बी एट द प्रोफिशिएंट लेवल, राइट? So this you have to compare. Now, section number 5 is parent feedback. Parents से feedback कैसे लेंगे? It is a feedback that is taken from the parents, keeping in mind the children's performance over a period. Parent, आपके पास बच्चा आता है स्कूल में, पढ़ के घर में जाता है, पेरेंट को भी पता है 6 महीने से बच्चा मेरा स्कूल में जा रहा है, यहाँ से कुछ सीख के आ रहा है, 6 महीने पहले उसकी ये परफॉर्मेंस थी, उसको ये पता था, आज उसका लेवल यहाँ पर है, राइट? सो it is to look at the certain behavioral changes that the parent might have observed in the students in the home environment कि पहले बच्चा ऐसे करता था, स्कूल में जा रहा है और उसकी जो vocabulary ऐसे एनहांस हुई है, पहले इन बच्चों चीजों का नहीं पता था. And the child has improved conversation skills also, behavioral changes, पहले अकेला अकेला रहता था, now the child has started working in a team. जिस भी तरीके की जो observations हैं वो बच्चों पेरेंट्स हैं हम उसका फीडबैक लेंगे. Now इसमें आपको कौन से पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, लाइक आप एक रेडीमेड शीट जो है वो बनाकर जिसमें कुछ रिस्पॉन्सेज आप पेरेंट्स से लेना चाहते हो वो बनाकर आप पेरेंट्स को दे सकते हो ड्यूरिंग पीटीए मीटिंग्स. एट द एंड ऑफ द ईच टर्म यू कैन गिव टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, और अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के थ्रू, आई मीन थ्रू वेरियस डिजिटल फॉर्म्स आप देना चाहते हैं, you can go ahead with that also. And all the parents might not be able to open a form of learning like that of life skills which is different from academics like basic math, science, languages, and may not be able to mention about the child's liking. हो सकता है कोई पेरेंट इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए बच्चे के बारे में, राइट? कोई नोटिस नहीं करते, किसी के पास इतना आजकल कई टाइम भी स्पेंड नहीं करते ना, वो बच्चे ज्यादातर टाइम स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, इन द क्रैश, some daycare centers, हॉबी क्लासेस, राइट? उनका आपस में मिलना जुलना नहीं होता तो वो कई इतना एक्सप्रेस कर भी नहीं पाते, राइट? सो व्हाटएवर इट इज, तो टीचर्स दे हैव टू बी पेशेंट एंड टेक देम अलोंग बाय गिविंग एग्जांपल्स, एक्सप्लेनिंग द पॉलिसी एंड द फ्रेमवर्क. तो टीचर्स को थोड़ा सा अगर उसमें हेल्प की रिक्वायर्ड है, जो हेल्प का रिक्वायरमेंट है, तो टीचर्स कैन प्रोवाइड द हेल्प टू द
पेरेंट्स। तो इस तरीके से ये हमें कलेक्ट करना है। एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर्स टू गिव, when you meet the parents, give the feedback sheet and give them a perspective for the same. Mention its need and its origin from the policy, कि इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, आप क्यों फीडबैक ले रहे हैं उनसे। से दैट दे वुड नीड टू फिल इट एट द एंड ऑफ ईच टर्म, एंड एनीथिंग फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ थिंग्स हैव चेंज कैन बी मेंशन्ड। उनको एक फ्रीडम, एक ब्लॉक ऐसे देना चाहिए जहां पर वो खुद अपने व्यूज को अपने तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाए इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। एंड दे कुड आल्सो मेंशन द स्टोरीज, maybe they can mention certain anecdotes, कि ये हमने देखा, जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं एनेक्डोटल रजिस्टर में, हम एक इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऐसा हुआ था वहां पर, और यहाँ से मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने इसका ये इन्फ्रेंस निकाला कि मेरे बच्चे में ये वाली कैपेबिलिटीज हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर से आए, राइट, मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, घर में बाहर से उतरे, वो रिक्शा पुलर से या ऑटो रिक्शा वाले से या किसी कैब वाले से बच्चे ने पूछा कि इतनी गर्मी है, आपको पानी चाहिए, पानी पिला दूं, ये करूं, तो आपको लगा कि नहीं, कंसर्न है, बच्चे में ऐसी वैल्यूज हैं, बच्चा एम्फेथाइज कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था, तो ये सब वैल्यूज कहाँ से आ रही है। मतलब दीज काइंड्स ऑफ स्मॉल एनेक्डोट्स आर देयर दैट कैन बी मेंशन्ड there in the feedback form also, right? तो ये आप पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। They could also mention the stories, anecdotes, like as I've already shared, the parent should observe both positive and the areas of improvement. Parent को biased नहीं होना है, right? Parents को पूरा अच्छे से एक्सप्रेस करना है कि कहाँ उनके ग्रो एंड ग्लो एरियाज, दोनों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये नहीं मेरा बच्चा है तो मैं अच्छा अच्छा लिख दूं, इसके रिपोर्ट कार्ड में अच्छा अच्छा जाए, नॉट लाइक दैट। इसमें अच्छा अच्छा क्या है, हम तो किसी को नेगेटिव नहीं कह रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रो एंड ग्लो एरियाज, कहाँ बच्चे को ज्यादा जरूरत है और एम्फेसिस की। लाइक दे हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट व्हाइल प्रोवाइडिंग द feedback. Now teachers, they have to go through the answers and the observations made by the parents, compare it to the observations that you have made for the students. आपने बच्चों के लिए क्या ऑब्जर्वेशन लिखी है, पेरेंट्स की क्या ऑब्जर्वेशन है, उसमें कहाँ सिमिलैरिटी है, कहाँ डिफरेंसेस हैं, ट्राई टू लुक फॉर द रीजन की डिफरेंसेस क्यों है, क्या वहां पर कोई बायसनेस है। टॉक टू द पेरेंट्स और उनसे बात करिए कि यहाँ पर ये ऐसे है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एंड अगर बच्चा स्कूल में ऐसा बिहेव कर रहा है ना, एज पर यू घर में ऐसा बिहेव कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, राइट। सो इस तरीके से यू विल गो अहेड विद द पेरेंट फीडबैक टू। Now let's talk about section number 6. It is the portfolio, a collection of photos and other resources of work done by the students during and after the activities. During the activities and when the activity is complete, you have captured a few pictures of students while they are engaged in the work and their work also. जैसे कि हम बात करते हैं कि लर्निंग कहाँ होती है, लर्निंग किसी प्रोजेक्ट के खत्म होने पर नहीं होती, लर्निंग थ्रू आउट प्रोसेस होती है। जब आप कितने ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाकर रिजेक्ट करते हैं, फिर नया करते हैं, वो लर्निंग वहां होती है। दैट इज अ मेसी वर्क, जो हमें मेस लगता है, वो लर्निंग एक्चुअली वहां होती है। तो बच्चों का जो है ड्यूरिंग द एक्टिविटी एंड द पोस्ट एक्टिविटी, द फाइनल वर्क एंड द प्रीवियस वर्क थ्रू आउट द एक्टिविटी, वो आपको कुछ उसके सैंपल्स जो हैं वो उसमें कलेक्ट करने हैं इन द पोर्टफोलियो, कि यहाँ मैंने ये सीखा, मेरी लर्निंग यहाँ हुई। And the next points to consider for the teachers for the portfolio: keep taking pictures and other resources as well as and when the activities are happening or just over. जब एक्टिविटी में बच्चे एनग्रॉस्ड हैं, आप उनकी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, एंड इवन द एक्टिविटी इज ओवर, देन ऑल्सो यू शुड कैप्चर पिक्चर्स। वो हम अपने सारे स्कूल्स में ऑलरेडी करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, राइट। दैट इज देयर विद ऑल ऑफ यू। Ask the students to save any art and craft work or other documentation they might have for the activities they have done and not thrown them away. उनको बोलना है कि फेंकना नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क है जो है, दैट इज टू बी केप्ट इन द पोर्टफोलियो। छोटे बच्चे हैं तो आप उनका घर में भी रख सकते हैं, बाद में मंगवा सकते हैं, या फिर जस्ट बिकॉज पेरेंट्स को भी देखना होता है, यू कैन शो इट ऑन द पीटीएम और अपने पास प्रिजर्व करके पहले से ही पोर्टफोलियो जो है यू हैव टू क्रिएट इट। आपको पता है पोर्टफोलियो के वीडियो में मैंने पहले से शेयर किया है कि जो पोर्टफोलियो है वो हम एक दिन में नहीं बनाते हैं, वो एंटायर ईयर का बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो होता है। सो कीप ऑन फाइलिंग द स्टूडेंट्स वर्क इन द पोर्टफोलियो and create a portfolio for the same for each student. It is to be created for each and every student. उसमें कोई pick and choose का option नहीं है। The teacher can decide on the number of the photos she would like to provide in the HPC. टीचर कैन डिसाइड कि हर एक की दो बेस्ट पिक्चर लगानी है या 5 पिक्चर्स लगानी है या कितना वर्क लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्कस विद योर मैनेजमेंट, लाइक अकॉर्डिंगली यू कैन गो हेड विद दैट। इन केस ऑफ एन ऑनलाइन टूल,
The soft copies of the photos can be pasted. हम online भी तो portfolio बनाते हैं. I have already shared with you. If you have not seen that, please go and check the description box. I will be sharing the link over there. You can check it out. And e-portfolio जो है वो create कर सकते हैं. उसमें pictures you can easily add on. There are number of platforms also. You see, you can use Wakelet, you can use Padlet, you can use Google Sheets, right? You can use Google Sites, sorry, for the PowerPoint presentation, whatever. I mean, different tools are there. You can use any of your choice. बच्चों के एक अलग से web link create हो सकता है. You can go ahead with that. So portfolio section is for both teachers and the parents. Look at the child's work and engagement in the classroom, right? वो दोनों उसको अच्छे से उसमें होमवर्क जो आपने दिया है, घर में जो एक असाइनमेंट दिया है, पेरेंट कोलैबोरेटिव टास्क दिया है, वो वाली पिक्चर्स भी आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं. नॉट ओनली द स्कूल वर्क. एंड द असेसमेंट कैसे करेंगे? Choose the best 3 photos or the documentation which are based on the 3 developmental goals for each student. तीनों गोल से रिलेटेड हेल्थ एंड वेलबींग है, चाहे इन्फॉर्म्ड लर्नर है, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपको हर एक डेवलपमेंटल गोल से रिलेटेड पिक्चर्स जो है उसमें ऐड करनी है इन योर पोर्टफोलियो, राइट? Now, each section of HPC helps in the competency based assessment. Competency based assessment की बात कर रहे हैं. Competencies क्या? Skills बच्चों के enhance करने के लिए. For example, during a circle time, school में हम circle time activity कराते हैं. During circle time, if a child is narrating about his or her previous day, कि Sunday या weekend पे मैंने कैसे celebrate किया, listening to the narration can help one to understand the skills like आप उसमें कौन कौन से स्किल्स बच्चों की देख सकते हैं. कहानी कोई भी बता रहा है बच्चा, चाहे वो शॉपिंग मॉल गया, चाहे वो बाजार से सामान लेने गया, चाहे उसने पार्क में टाइम स्पेंड किया, चाहे वो अपने दादा दादी के साथ मंदिर में ही क्यों नहीं जाके आया है, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाके आया हो कहीं पर भी, तो वो चीजें जब नरेट करता है उसमें आप उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? यू हैव टू टॉक अबाउट द सीक्वेंसिंग कि जो नरेशन है बच्चे ने किया वो ऑर्डर में है, स्टेप बाय स्टेप है कि घर से चले, फिर वहां गए, फिर ऐसे किया, कौन सा ट्रांसपोर्ट लिया, वो कैसे गए, कहाँ पहुंचे, फिर वहां क्या किया, वापस आए. तो सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखना है. वोकैबुलरी, बच्चा उसमें नए नए वर्ड्स यूज कर रहा है. आई मीन दैट एनहांसेस द चाइल्ड्स वोकैबुलरी. एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज और द सेकंड, कौन सी लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज का या सेकंड लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं उनको भी यूज कर रहा है, मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, राइट? सेल्फ एक्सप्रेशन, इज द चाइल्ड कॉन्फिडेंट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, राइट, इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. कनेक्शन, इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कैसे कनेक्ट कर रहा है. डज द चाइल्ड मेंशन अदर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स इन द स्टोरी, उनकी भाई बात की है, उनके रिलेशन के बारे में बात की है, कुछ ऐसे बात किया है कि हाउ द चाइल्ड इज कनेक्टेड टू देम, राइट? तो वो आप इन सब चीजों को आपने नोटिस करना है. आपको कहानी से कहाँ गया है वो मतलब नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल गया है या उसने साइकिल चलाई है या वो बाहर कहीं हेल्प किया है, वो आपको उस चीज से मतलब नहीं है. आपको इस चीज को देखना है. सिक्वेंसिंग है, वोकैबुलरी है, कनेक्शन है, लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है. यू हैव टू थिंक अबाउट दिस. इसके अकॉर्डिंगली आपको ऑब्जर्व करना है. वन टास्क कैन हेल्प टू असेस मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज. एक टास्क दिया आपने अभी बच्चे को कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कहाँ गए थे, हाउ द चाइल्ड स्पेंट संडे, ठीक है? और उसके बेसिस पर आपने कितनी सारी कॉम्पिटेंसीज, कितनी सारी स्किल्स जो है वो बच्चों की को असेसमेंट किया, right? Multiple tasks or activities should be planned wherein a child is having enough opportunity to experience the competencies aimed for. अब ये सिर्फ एक एक्टिविटी के बेसिस पर आप बच्चे का एक्सप्रेशन, बच्चे का कनेक्शन या सीक्वेंसिंग जो है उसको जज नहीं कर सकते हो. यू हैव टू गिव मल्टीपल ऑप्शंस. जैसे मैंने पहले बोला था कि 10 जो है टेस्ट आइटम्स फॉर ईच लर्निंग आउटकम या कॉम्पिटेंसी वो होना चाहिए. लाइक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए. टीचर शुड प्लान द टास्क टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द चाइल्ड experience or develop each learning outcome as determined for a particular grade. हर ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलोज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्टिविटीज जो है वो प्लान करनी है. And this would help to understand a child's conceptual learning of the skill as well as the application of the skill. आपको बच्चे की concept clarity समझ में आएगी and how the child is using it, how the child is applying the knowledge, and you will also understand that. For the purpose of reporting, assessment can be done anytime in the term. कभी भी आप वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई फिक्स्ड बात नहीं है. यू नीड नॉट टू अनाउंस इन द क्लास. कोई एग्जामिनेशन समेटिव नहीं हो रहा कि आपको पहले डेट शीट बना कर देना है. एनी टाइम यू कैन असेस एज एंड व्हेन यू फील लाइक.
राइट, एंड ऑफ द टर्म की वेट करने की जरूरत नहीं है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड as a part of HPC is used to plan the teaching learning strategies and help to modify the ongoing activities to ensure that it meets the needs of all the learners. So जो आप activities plan करते हो उसके accordingly that is your reflection also. बच्चों की knowledge की, बच्चों की abilities की, skills की आपको understanding होती है, you observe it and accordingly you can go ahead with any kind of change in the strategies or the activities that you have planned. HPC invites intervention rather than evaluation. हम evaluation नहीं करते, हम intervention करते हैं. Means अगर हमने एक बार बच्चे को से कुछ नोटिस किया, उसके बाद बच्चे को और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. एक बार आपको लगा कि बच्चा स्कूल लैंग्वेज या दोनों लैंग्वेज एक साथ यूज कर रहा है, तो चाइल्ड इज नॉट एक्सप्रेसिव, राइट. तो नेक्स्ट टाइम आप उस बच्चे को मौका दे सकते हो. द चाइल्ड कैन यूज ओनली द होम लैंग्वेज, बिकॉज आपको एक्सप्रेशन देखना है, आपको सिक्वेंसिंग और कनेक्शन देखना है, वोकैबुलरी देखनी है, राइट. Now, different activities that you can use, a few of the examples are listed here. Like, for example, you can take the students for nature walk and then you can discuss what they have observed. Spot running, hopping, etc. Seriation of the sticks, musical movement, miming, role play, art-based activity, drawing, painting, puppet making, clay dough, storytelling, circle time. There are a number of task-based assessments. आप इसमें कोई भी अपने तरीके से भी कोई task दे सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट टास्क आपको अपना एक रूब्रिक्स डिजाइन करना है कि आप उनकी असेसमेंट कैसे कर रहे हो, राइट. आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल टू. फॉर एग्जांपल, टास्क बेस्ड एक्टिविटी मेकिंग सैलेड फ्रॉम लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये हमने एक टास्क करा रहे हैं बच्चों से, तो इसके अकॉर्डिंगली हम रूब्रिक्स इसके कैसे प्लान करेंगे असेसमेंट के लिए. रूब्रिक्स प्लान करेंगे तीनों डेवलपमेंटल गोल के लिए, राइट. हमने क्या लिया था टास्क, making salad from local fruits and vegetables. Salad making and using local fruits and vegetables. ये हमारा task है. And developmental goal 1, health and well-being. हम जो भी rubrics ले रहे हैं, आप देखिए सबके लिए हम इसका जो parameters हमने इसके different लिए हैं, they are already listed over here. I'll discuss with them all. तो बच्चों की जो learning की stages हैं, वो हमने 3 ली हैं: beginner, progressing and proficient, right? Now that's up to you. If you want to use any other name, any other terminology, you can write beginner, intermediate or advanced, or maybe you can write like the child is just about to meet the expectation or child is doing beyond expectation. Or if you want, you can go ahead with the using single point rubric also. सिंगल पॉइंट रूब्रिक में हम एक प्रोफिशिएंसी लेवल सेंटर में डिफाइन करते हैं, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है. तो उस प्रोफिशिएंसी के दोनों तरफ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड यू विल राइट वेदर द चाइल्ड लाइक उसमें कितना डेविएट कर रहा है. अगर तो बच्चा सेंटर में है, प्रोफिशिएंट लेवल है, तो इट मीन्स द चाइल्ड हैज अचीव्ड दैट पर्टिकुलर टारगेट. उस टारगेट तक पहुंचने में क्या कमी है, क्या बच्चे को और करना है, दिस यू हैव टू मेंशन द लेफ्ट हैंड साइड. एंड अगर वो उसको अचीव करने के बाद बच्चे ने कुछ ऐसा किया दैट इवन यू डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस एज का बच्चा, इस लेवल का बच्चा, इस ग्रेड का बच्चा वो करेगा, एंड देन इट मींस चाइल्ड इज गोइंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेंसी लेवल, राइट. सो वो सिंगल पॉइंट रूब्रिक भी बनाया जा सकता है. दैट इज अप टू यू. नाउअडेज सिंगल पॉइंट रूब्रिक्स दे आर बीइंग यूज्ड इन many schools, right? You can go ahead with that also, whatever you are comfortable at, right? तो अगर हम यहाँ पर 3 levels की बात कर रहे हैं, beginner, progressing and proficient. सबसे पहले हमारे पास क्या LO है, like maintains hygiene and cleanliness and healthy eating practices independently. अपने आप वो hygiene, cleanliness को maintain कर रहा है. अगर आपको लगता है थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, बिगनर लेवल पर है, या थोड़ा सा और अच्छे से बेटर कर रहा है, प्रोग्रेसिंग है या प्रोफिशिएंट है, ये आपको जो असेसमेंट है ईयर के एंड में एक बार नहीं लेना है. यू हैव टू टेक मल्टीपल टाइम्स. तो हो सकता है एक बार बच्चा बिगनर लेवल पर है, आपने थोड़ा गाइड किया, नेक्स्ट टाइम द चाइल्ड इज एट द प्रोग्रेसिंग लेवल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली द चाइल्ड रीच एट द प्रोफिशिएंट लेवल, राइट. तो आपको ये थ्राइस लेना है, नॉट ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट. एट ईच टर्म यू हैव टू गो हेड विद दैट. Now identifies locally available food items and avoids wastage of food. इसमें 2 चीजें आप देख रहे हैं कि एक तो locally available food के बारे में बच्चे को जानकारी है, उसी को यूज कर रहा है क्योंकि आपका टारगेट वही था, एंड वेस्टेज नहीं कर रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट. एंड देन डिस्प्लेस द फाइन मोटर स्किल्स एंड एक्यूरेसी एंड कंट्रोल एंगेजेस आर्ट इंटीग्रेटेड, राइट. फॉर एग्जाम्पल कि हम फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे ने प्रेजेंटेशन करना है, सैलड मेकिंग है, कैसे वो अरेंज कर रहा है उसको,
फाइन मोटर स्किल्स अपनी यूज कर रहा है, कैसे उसको डिस्प्ले कर रहा है सैलेड को, राइट। कटिंग चॉपिंग तो नहीं बच्चों को कराएंगे, उनको ऑलरेडी डाइस जो है वो हम फ्रूट्स प्रोवाइड करेंगे, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो एंड देन uses coordinated movements for using scissors, knives, etc. अगर आपका बच्चा बड़ा है, उसको आपने child knife, safety scissors कुछ ऐसा provide किया है, the child is using it properly, handling it properly. Only safety scissors if you are using, okay, that is meant for children only. Now goal number 2 is effective communication. If in under effective communication, we have made this rubric connects personal experience and talks about them in their own language. जो बच्चा अपना बनाया है, उसके लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट, इन ओन लैंग्वेज, क्या बनाया है, कैसे बनाया है, प्रोसीजर द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस एंड टॉक्स अबाउट the birds, animals, food, vegetables, etc. in the surroundings, home, school, neighborhood, and writes a few words about them by using invented spelling, conventional writing, etc. अपने surroundings के बारे में बच्चे को पता है, राइट, ये फ्रूट्स वगैरह कहाँ से लेके आए हैं, कैसे है, हाउ कम्युनिकेट कर पा रहा है प्रॉपरली, attempt to the sound, attempt to the sound to the words, okay, एंड देन आप जो बोल रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेबल्स द ऑब्जेक्ट सच एज क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली लेबल कर पा रहा है, चाहे वो खुद लिख के कर पा रहा है एक एज के अकॉर्डिंगली। छोटा बच्चा तो आपने लेबल्स बना के दिए, द चाइल्ड इज एबल टू स्टिक इट एट अ प्रॉपर प्लेस, राइट। एंड दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्व्ड लर्नर्स. Under this, notices and describes finer details of the object such as color, sound, surface, animals. छोटी छोटी डिटेल्स किसी चीज की, माइन्यूट डिटेल्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको बता रहा है, नोटिस कर रहा है। इन्फॉर्म्ड इन्वॉल्व्ड लर्नर्स तो वही हो गए ना जो अच्छे से एक एक चीज बारीकी से जो है उसको नोटिस किया जा रहा है। बच्चे की क्यूरियोसिटी लेवल आपको पता चलता है। आइडेंटिफाइज कॉमन ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, साइंस ऑन द बोर्ड्स, ये सारी पॉइंट्स जो हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द लर्निंग आउटकम मैनुअल ग्रेड वाइज, ओके। आप इसमें से लेकर अपना कोई भी जो लर्निंग आउटकम है जो आपके बच्चों के लिए आपको अप्रोप्रिएट लगता है आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंगली, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर जैसे इसमें लिखा है कंपेयर्स द टू नंबर्स अप टू 20, आपने बच्चों को 20 तक काउंटिंग बताई है, सिखाई है, बच्चे को आती है, उस ग्रेड के बच्चे को वो कंपेयर कर सकता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली वो कौन से लेवल पर है। तो ये एलोस जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, सारी एलोस इन द जब हम ग्रेड वाइज डिस्कस करेंगे डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स. Now, points to consider for teachers: multiple tasks or activities should be planned wherein the child has enough opportunity to experience the competencies aimed for. एक टास्क के बेसिस पर आप बच्चे की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हैं. टास्क और द एक्टिविटीज शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट असेसेस मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज टुगेदर. एक टास्क अगर बच्चों से करवा रहे हैं उसमें से एक ही कॉम्पिटेंसी आप बच्चे की असेस नहीं कर सकते. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर आपने बच्चों को पिक्चर डिस्क्राइब करने के लिए कहा है, राइट, बड़े बच्चे हैं, थोड़ा हो सकता है आपने लिखने के लिए दिया है, आपने उनको वर्ड्स दिए हैं, राइट, तो उसमें आप कितनी सारी बच्चे की कॉम्पिटेंसेस जो है वो असेस कर सकते हो, बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बच्चा इन्वॉल्व है कि नहीं, उसने सारी की सारी जो चीजें उसमें कितनी मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं जो उसको नजर आ रहा है उसमें से उसने कवर किया है इन हिज और हर डिस्क्रिप्शन. बच्चे की वोकैबुलरी, बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बच्चे का कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, यू नीड टू ऑल द डिफरेंट थिंग्स, राइट, इन पिक्चर डिस्क्रिप्शन. सिर्फ उसमें हम स्पेलिंग के बेसिस पर बच्चे को जज नहीं करेंगे, आप बच्चे की राइटिंग स्किल नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वो मतलब दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, बट उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे को इसमें सिर्फ स्पेलिंग के बेसिस पर आपने सिर्फ स्पेलिंग जज किया. देयर आर नंबर ऑफ स्किल्स दैट यू विल बी चेकिंग. नाउ, a beginner, progressing, and proficient. The student is at the beginning stage of the target competency and needs to a great deal of support and hand holding. जहां आपको लगता है बच्चे को ज्यादा scaffolding की, hand holding की जरूरत है, the child is at the beginner level and the student is able to meet some part of the target competency but needs some support and hand holding occasionally. The child is at progressing level and the student is able to meet the target competency independently without any support. The child is proficient in that very learning outcome. So my lovely educators, so this was all about different sections that you have to cover in HPC holistic progress card, starting from knowing about myself, my family, and coming till involved learners different rubrics. So in the next video I will show you a template of the HPC
Holistic Progress Card. Stay tuned, like, subscribe, and share Mentoring the Mentors. Have a nice day.